بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی سوچا ہے اگر آج اللہ ہماری ایک دعا ضرور قبول کرنی ہو تو ہم کیا مانگیں گے؟ ایک ایسی دعا جس میں دل کا سکون ہو، جس میں روح کی شفا ہو، ایک ایسی دعا جو قسمت بدل دیتی ہو، ایک ایسی دعا جس میں گناہوں کی معافی ہو، ایک ایسی دعا جسے اولیاء اللہ راتوں کو رو رو کر پڑھتے تھے۔ یہ دعا امام علی سے منسوب ہے۔ امام علی کی یہ دعا ایسی ہے جسے سن کر اور پڑھ کر دل خود بخود اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس دعا کو دعائے خضر بھی کہتے ہیں۔ یہ دعا مولا علی نے اپنے خاص ساتھی، شاگرد اور صحابی کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی۔ اے کمیل، اسے شب جمعہ اور شب برات میں پڑھو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو مہینے میں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال بھر میں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھو، کیونکہ یہ دعا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ مولا نے کہا یہ دعا دلوں کو زندہ کرتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، رزق اور رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ دعا دشمن کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس دعا میں معافی ہے، رحمت ہے، نجات ہے، اندھیروں میں روشنی ہے، اور وہ سکون ہے جو پوری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری قوت کا واسطہ دے کر جس سے تجھے ہر شے پر قاہری حاصل ہے، جس کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے، اور تیرے جبروت کے واسطے جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری عزت کا واسطہ دے کر جس کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں آ سکتی، تیری قدرت اور عظمت کا واسطہ دے کر جس کے جلووں سے ہر چیز بھری ہے، جسے ہر چیز پر بالادستی حاصل ہے، تیرے جلوہ ذات کا واسطہ دے کر جو ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والی ہے۔ اے اللہ، تیری سلطنت عظیم ہے، تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب آنے والا ہے، اور تیری قدرت کا عمل جاری و ساری ہے، اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ خداوندہ، تیرے سوا نہ میں اپنے گناہوں کا کوئی بخشنے والا پاتا ہوں، نہ کوئی ایسا جو میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہو، نہ کوئی ایسا جو میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا ہو سوائے تیری ذات کے۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، اور حمد صرف تیرے لیے ہے۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرت کی۔ مالک، مجھے سوچ کر سکون ملا کہ مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت پہلے سے ہے، اور مجھ پر تیرے احسانات قدیم ہے۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے مولا، کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی، اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائیں، اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور رکھیں۔ مالک، تو نے میری کتنی ہی تعریفیں لوگوں کی زبانوں پر جاری کی جس کا میں ہرگز اہل نہ تھا، اور تیرے جلوہ ذات کا واسطہ دے کر جو ہر شے کے فنا کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر جو ہر شے کے اجزاء میں کار فرما ہے، تیرے علم کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر محیط ہے، تیرے جلوہ ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر جس سے ہر چیز روشن ہے۔ یا نور النور، اے بے انتہا پاک، اے اولین میں سب سے اول، اے آخرین میں سب سے آخر، اے میرے معبود، اے میرے رب، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ خدایا، میرے وہ گناہ بخش دے جو عذاب نازل کرواتے ہیں۔ بار الہ کرم فرما، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل دیتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ خداوندہ، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہو جاتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ بار الہ کرم فرما، بار الہ بخش دے سب گناہ جو میں نے کیے ہیں، جو خطائیں میں نے کی ہیں۔ خداوندہ، میرا ہر وہ گناہ معاف فرما دے جو میں نے کیا ہے، اور ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے۔ اے اللہ، میں تیرا ذکر کر کے تیرا قرب چاہتا ہوں، اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں۔ میں سوالی ہوں تیرے جود و کرم کا، مجھے اپنا قرب عطا کر اور اپنے ذکر کی توفیق دے۔ میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ بار الہ، تیری درگاہ میں سوالی ہوں، عاجز اور حقیر بندہ تیری ہیبت سے ڈرے ہوں کی طرح
मुझसे शमपोशी फरमा, मुझसे दरगुजर कर मुझ पर रहम फरमा। मालिक, जो कुछ मुझे दिया है और मेरे लिए मुकर्रर किया है, इस पर मुझे राजी बर रजा बना दे और हर किस्म के हालात में मुझे राजी और नरम खू रहने वाला बना दे। बारिला, मैं तो इससे सवाल करता हूँ तेरी दरगाह का भिखारी होकर, उस शख्स की तरह जो सख्त तंगी में हो और सख्तियों में पड़ा हो, अपनी हाजत लेकर तेरे हजूर आया हो, और वो जो कुछ तेरे कब्ज़े कुदरत में है इससे पूरी आस लगाए बैठा। ऐ अल्लाह, ऐ माबूद, मेरी मुसीबत बहुत अजीम है, मेरी बदहाली हद से बढ़ गई है, मेरे अमाल बहुत कम है, गुनाहों की जंजीर ने मुझे जकड़ लिया है, लंबी लंबी आरज़ुओं ने मुझे अपना कैदी बना रखा है, दुनिया ने अपने धोखेबाजी से और नफ्स ने जराइम और हीला साजी से फरेब दिया है। ऐ मेरे आका, मैं तेरी इज्जत का वास्ता देकर सवाल करता हूँ कि मेरी दुआ को तेरी बारगाह तक पहुँचने से मेरे किरदार और आमाल की बदी ना रोक सके। मालिक, तू मुझे मेरे इन पोशीदा राजों की वजह से रुसवा न कर जिनसे तू वाकिफ है। मालिक, मुझे सज़ा देने में जल्दी न कर जो मैंने खलवत में गुनाह किए हैं, बुराई की है, हमेशा कोताही की है और जहालत की है। मालिक, इसमें मेरी नादानी, ख्वाहिशों की कसरत और गफलत भी है। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे अपनी इज्जत का वास्ता हर हाल में मुझ पर मेहरबान रहे और तमाम कामों में मुझ पर रहम करम फरमा। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सरदार, तेरे सिवा मेरा कौन है जिससे दरख्वास्त करूं कि मेरी मुसीबत को दूर कर दे और मेरे मामले पर नज़र रखे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, तूने मेरे लिए जो हुक्म सादिर फरमाया इस पर अमल करने में मैंने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की। मैं दुश्मन की फरेबकारी से बच ना सका, इसने मुझे मेरी ख्वाहिशों का सहारा लेकर धोखा दिया और वक्त ने इसका साथ दिया। बस तूने हुक्म सादिर किया, मैंने इसमें तेरी बाज हदूद को तोड़ा और बाज अहकामात के खिलाफ अमल किया। बस हम्द है तेरे लिए, इन सब का बार मुझ पर है, मुझे किसी एहतजाज का हक नहीं और मेरे पास कोई हुज्जत नहीं। तेरा हुक्म का मेरे लिए जारी होना और तेरी तरफ से बला का आना लाजमी हो गया है। मालिक, अब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ जबकि मैंने कोताही की अपने नफ्स पर ज्यादती के बाद। मालिक, तेरी बारगाह में सर झुकाए हुए जुर्म बख्शवाने के लिए, गुनाहों की मगफरत के लिए, तौबा के लिए हाजिर हुआ हूँ। अपने गुनाहों का इकरार और अपनी खताओं का इतराफ करते हुए मालिक, जो कुछ मुझसे सर दर्द हुआ है इससे बचकर निकल जाने के लिए कोई राह फरार नहीं पाता और ना कोई पनाहगाह पाता हूँ जिसकी तरफ इस परेशानी में रुख कर सकूँ सिवाय इसके कि तू मेरी उज़्र ख्वाही को कबूल करे और मुझे अपनी वसी तर रहमत में दाखिल कर दे। ऐ मेरे मालिक, मेरी माफ़ी की इल्तिजा को कबूल फरमा, मेरी तकलीफ की सख्ती पर रहम फरमा और भारी मुश्किल से रिहाई दे। ऐ परवरदिगार, रहम फरमा मेरे बदन की कमज़ोरी, जल्द की नाज़गी और हड्डियों की बारीकी पर। ऐ वो ज़ात जिसने मेरी खलकत और मेरे काबिल ज़िक्र होने की इब्तदा की जबकि मैं कुछ न था, और मेरी नशोनुमा और मेरी परवरिश और मुझे ग़िज़ा बहम पहुँचाने की इब्तदा की, अपने इस पहले करम के वसीले से माफ़ फरमा। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, या मैं ये समझूं कि तू मुझे अपनी जहन्नम की आग का अजाब देगा जबकि मैं तेरी वहदानियत पर ईमान ला चुका हूँ, तेरी तौहीद का मोतरफ हूँ। इसके साथ मेरा दिल तेरी मार्फत से लबरेज है और मेरी ज़बान तेरे ज़िक्र में लगी हुई है और मेरा ज़मीर तेरी मोहब्बत से गूंधा हुआ है। और इसके बाद मैंने सच्चे दिल से तुझे माना है। तेरी रबूबियत के आगे मेरी आजाना पुकार के बाद भी मालिक मुझे अजाब देगा हरगिज़ नहीं। तू बुलंद है और तू उसे तबाह होने देगा जिसकी तूने
परवरिश फरमाई, या उसे अपनी दरगाह से दूर करेगा जिसे अपना कुर्ब हासिल करने की नेमत दी, या इसे बेसहारा छोड़ देगा जिसे तूने पनाह दी, या इसे बलाओं के सुपुर्द कर देगा जिसकी तूने हाजत रवाई की, जिस पर तूने रहम फरमाया। मैं कैसे मान लूँ ऐ मेरे रब, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला कि तू आग को मुसल्लत कर देगा इन चेहरों पर जो तेरी अजमत के सामने सजदे में पड़े हैं, इन ज़बानों पर जो तेरी वादानियत के सच्चे इतराफ़ में हैं और तेरा शुक्र अदा करने के लिए तेरी हम्द व सना में गोया हैं, और इन दिलों पर आग मुसल्लत कर देगा जो तेरे माबूद होने को सच्चे दिल के साथ मान चुके हैं। कैसे मान लूँ कि तो आग को मुसल्लत कर देगा इन दिलों और ज़मीरों पर जो तेरी मार्फत का दामन पकड़ चुके हैं, यहाँ तक कि इन दिलों में तेरी खौफ से खुशू व खुजू पैदा हो चुका है। मालिक मालिक तेरी ज़ात और तेरे फजल व करम से ऐसा गुमान नहीं कि तू अपने ऐसे बंदे को आग में डाले। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, तू मेरी कमज़ोरी जानता है। दुनिया की मामूली बलाओं के मुकाबले में और अहले दुनिया पर जो सख्तियाँ आती हैं, अगर चाहे तंगी और सख्ती का ठहराव और बका का वक्त थोड़ा है और मुद्दत कलील है, लेकिन मैं इन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर मैं कैसे आखिरत की मुश्किलों को झेल सकूँगा जो बड़ी सख्त हैं। इनकी मुद्दत बेहद तवील है और वो हमेशा रहने वाली हैं और ज़द में आने वालों के लिए घटती नहीं, क्योंकि वो तेरे गज़ब, तेरे इंतकाम और तेरी नाराज़गी से आती हैं। और ये वो सख्तियाँ हैं मालिक जिसके सामने ज़मीन और आसमां भी ठहर नहीं सकते। ऐ मेरे मालिक, फिर मेरा क्या हाल होगा जबकि मैं तेरा कमज़ोर, ज़लील, हकीर और मस्कीन बंदा हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, तेरे हुजूर किन बातों की शिकायत करूं, इनमें से किस बात के लिए गिरिया जारी करूं? दर्दनाक अजाब पर, इस अजाब की सख्ती पर, या बला के बढ़ते हुए सिलसिले पर, या इसकी तवील मुद्दत पर। अगर तूने मालिक मुझे अपने दुश्मनों के साथ अजाब और सख्तियों में रखा, इनके साथ इकट्ठा कर दिया जिन्हें तूने मालिक अजाब में मुब्तला किया है, और मुझे अपने महबूब बंदों और अपने औलिया से जुदा कर दिया, तो मालिक मेरे अल्लाह तू ही बता दे, अगर तेरे अजाब पर मैंने सब्र भी किया तो तुझसे दूरी और जुदाई पर मुझसे सब्र कैसे होगा? रहम फरमा। तेरी आतिश जहन्नम की हरारत पर मैंने सब्र कर भी लिया तो तेरे करम से किस तरह चश्म पोशी कर सकूंगा? ऐ मालिक, मैं कैसे तेरे अजाब की आग में पड़ा रहूंगा जबकि मेरी उम्मीद वाबस्ता है तेरे अफू और दरगुजर से। बस मालिक, मुझे तेरी इज्जत की कसम, अगर तूने मेरी गोयाई बाकी रहने दी तो मैं अहले नार के दरमियान तेरे हुजूर ऐसे फरियाद करूंगा जैसे करम के उम्मीदवार करते हैं, और तुझे ऐसे पुकार कर आहोजारी करूंगा जिस तरह फरियादी आहोजारी करते हैं, और तेरे हुजूर ऐसे आंसू बहाऊंगा जैसे नाउमीद होने वाले गिरियाउजारी करते हैं। और मालिक तुझे पुकारूंगा, कहाँ है तू ऐ मोमनों के मददगार, ऐ आरफों की उम्मीद के मरकज, ऐ बेचारों की दाद रसी करने वाले, ऐ सच्चे लोगों के दिली दोस्त, ऐ आलमीन के माबूद, तू कहाँ है? तू मिलेगा ऐ आलमीन के माबूद, तेरी ज़ात पाक है माबूद, इस तस्बीह में तेरी हम्द है, तेरा शुक्र है मालिक। तू इस मकाम में अजाब से भी एक बंदा मुस्लिम की आवाज़ सुन रहा है। मैं यहाँ अपनी सरकशी की सज़ा में कैद हूँ, अपनी नाफरमानी और गुनाहगारी के बहस यहाँ के अजाब का मज़ा चख रहा हूँ, अपने जुर्म गुनाह पर जहन्नम में कैद हूँ। मालिक वो तेरे सामने गिरियाज़ारी कर रहा है, तेरी रहमत के उम्मीदवार की तरह अहले तौहीद की ज़बान में तुझे पुकार रहा है, तेरे हुजूर तेरी रबूबियत का वसीला बना रहा है। ऐ मेरे मौला, पस किस तरह वो अजाब में रहेगा जबकि वो तेरे दुस्ता इल्म व करम का उम्मीदवार है, या फिर आग क्यों कर उसे तकलीफ देगी जबकि वो तेरे फजल और रहमत की उम्मीद रखता है, या आग के शोले इसको कैसे जलाएंगे जबकि तू उसकी आवाज़ सुन रहा है और देख रहा है कि वो कहाँ है, या फिर कैसे जहन्नम की आग उसे घेर सकती है जबकि तू इसकी कमज़ोरी को जानता है, या वो जहन्नम के तबकों में कैसे परेशान रहेगा जबकि तू इसकी सच्चाई से वाकिफ है, कैसे जहन्नम के फरिश्ते इसे झड़केंगे जबकि वो मालिक तुझे
पुकार रहा है। ऐ मेरे परवरदिगार, ये कैसे मुमकिन है कि वो गुलामी में तेरे फजल का उम्मीदवार हो और तू इसे जहन्नम में रहने दे। हरगिज़ नहीं, तेरे बारे में ये गुमान नहीं हो सकता। न तेरे फजल का ऐसा तारुफ है, न ये तौहीद परस्तों पर तेरे एहसान और करम से शाबे है। मालिक, मुझे कामिल यकीन है कि अगर तूने फैसला ना कर लिया होता अपने मुनकरों को अजाब में मुब्तला करने का और अपने दुश्मनों को हमेशा अजाब में रखने का, तो तू मालिक ज़रूर पूरे जहन्नम की आग को ठंडा कर देता और सलामती बना देता और किसी एक फर्द का भी इसमें मस्कन और मकान न रखता। लेकिन तेरे इस्माउल हुस्ना मुकद्दस है। तूने कसम खाई है कि जहन्नम को सब काफरों से, जिन्नों में से और इंसानों में से भर देगा और दुश्मनों और नाफरमानों को हमेशा इसमें रखेगा। और तेरी हम्द व सना और अजमत व जलालत वाली है। खुद मालिक, ये तूने इरशाद फरमाया है, क्या वो लोग जो मोमिन है हैसियत में फासिक के बराबर है? नहीं, ये मसावी हैसियत के नहीं है। तो ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरा साइल हूँ उस कुदरत का वास्ता देकर जो तूने ज़ाहिर फरमाई है और तेरे इन अहकाम का वास्ता देकर जिन्हें तूने अटल और नाकाबिल तगय्युर करार दिया है। और तू इन पर गालिब है जिन पर तूने ये हुक्म नाफिज किए हैं। तू बख्श दे, माफ़ कर दे। आज के दिन, आज की रात, इस सातों में मेरे सारे जुर्म जिनका मैं मुर्तकिब हुआ हूँ, वो तमाम गुनाह जो मुझसे सरजद हुए हैं, वो तमाम बुराइयाँ जो मैंने की हैं, वो तमाम नादानियाँ जो मुझसे हुई हैं, अलल ऐलान या पुशीदा, मख्फी या ज़हर में है, और मेरे गुनाहों के लिखने का तूने मुअज़्ज़िज़ कातिबीन को हुक्म दिया है जिन्हें तूने मुकर्रर किया है। जो कुछ मैं करूं उसे महफूज करें और इन्हें मेरे आज़ा के साथ मुझ पर गवाह बनाया। और मालिक, तू खुद भी मुझ पर नाजिर और इस बात का गवाह है मैं जो उनसे पोशीदा है। हालांकि तूने अपनी रहमत से इसे छुपाया और अपने फजल से इन पर पर्दा डाला, वो माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे आका, मेरे लिए वाफिर हिस्सा करार दे हर उस खैर में जिसे तूने नाजिल किया हो, हर उस एहसान में जो तूने किया हो, हर उस नेकी में जिसे तूने फैलाया हो, रिज़्क में जिसे तूने वसी किया, या गुनाह में जिसे तूने माफ़ किया, या गलती में जिसे तूने छुपाया। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे आका, ऐ मेरी गुलामी के मालिक, ऐ मेरी जान के मालिक, ऐ वो जिसकी गिरफ्त में मेरी पेशानी है, ऐ मेरी तकलीफ मोहताजी से वाकिफ, ऐ मेरे फ़क्र व फाका से आगाह, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे तेरे हक होने, तेरी पाकीज़गी, तेरी अजीम सिफ़ात अस्मा का वास्ता देकर सवाल करता हूँ। मेरे रात दिन के औकात को अपने ज़िक्र से मामूर कर दे और मुसलसल अपनी हजूरी में रख और मेरे अमाल को अपनी जनाब में कबूलियत अता फरमा, यहाँ तक कि मेरे तमाम अमाल और अज़कार तेरे हजूर विरद करार पाएँ और तेरी अताअत व इबादत में मेरा ये हाल हमेशा कायम रहे। ऐ मेरे आका, ऐ वो जिस पर मेरा तकिया है, ऐ वो जिससे मैं अपने हालात की तंगी बयान कर सकता हूँ, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, ऐ वो ज़ात जो मेरा सहारा है, जिस पर मेरा भरोसा है, ऐ वो जिसके हजूर में मैं अपना दर्द बयान करता हूँ। ऐ परवरदिगार, ऐ परवरदिगार, ऐ परवरदिगार, मेरे अज़ा को अपनी अताअत व इबादत के लिए कवी बना दे, अपनी अज़मत से मेरे बातनी इरादों को मजबूत बना दे, मुझे तौफीक दे तुझसे डरूं, बराबर तेरी इताअत व इबादत में लगा रहूं, यहाँ तक कि पूरी रफ्तार से तेरी तरफ आऊं, ताकि तेरी बारगाह में साबिकीन की राहों पर चल पड़ूं और तेरी तरफ जाने वालों से आगे निकल जाऊं, तेरे कुर्ब का शौक रखने वालों में ज़्यादा शौक रखने वाला बन जाऊं, तेरे खालिस बंदों की तरह तेरे करीब हो जाऊं और अहले यकीन की तरह अपने अंदर तेरा खौफ पैदा करूं और तेरी बारगाह में
मोमिनीन के साथ शामिल हो जाऊं। ऐ मेरे रब, जो शख्स मेरे साथ बुराई का इरादा करे तू इसे अपनी गिरफ्त में ले ले, और जो मुझे फरेब दे तू इसे अपने इंतकाम की गिरफ्त में जकड़ ले, और मुझे अपने बेहतरीन बंदों में शामिल कर, अपने नज़दीक मकबूल और कामयाब और अपनी बारगाह में रुतबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल करने वालों में शामिल कर, और अपना कुर्ब हासिल करने वालों के दरमियान बंदगान खास का दर्जा दे, और ये रुतबा तेरे फजल के बगैर हासिल नहीं हो सकता। अपने शान करीमी से मुझ पर रहम फरमा, और अपनी बुजुर्गी व बरतरी से मुझ पर मेहरबान हो जा। अपनी रहमत से मुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, मेरी ज़बान को अपने ज़िक्र में गोया कर दे, मेरे दिल को अपनी मोहब्बत का असीर बना दे, और मेरी मनाजात को हुस्न कबूलियत अता फरमा। मुझ पर एहसान फरमा, ऐ मेरे गुनाहों से दरगुजर करने वाले, मेरे गुनाहों से दरगुजर कर और मेरी लग़ज़शों को माफ़ कर दे। तूने मालिक अपने बंदों को हुक्म दिया है कि तेरी इबादत करें, और दुआ का हुक्म दिया है कि तुझे मांगें और तुझे पुकारें, और तूने दुआ कबूल करने की ज़मानत दी है। बस ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपना रुख तेरी तरफ कर रहा हूँ, तेरे आगे हाथ फैला रहा हूँ। तू अपनी इज़्ज़त के तुफ़ैल मेरी दुआ कबूल फरमा, मुझे मेरी मुराद दे, अपने फजल से लगी मेरी उम्मीद न तोड़, और मुझे मेरे दुश्मनों के शर से, चाहे वो जिन्नों में हूँ या इंसानों में हूँ, बचा और अपनी हिमायत में ले ले। या सरी और रज़ा, ऐ जल्द राज़ी होने वाले, मुझे बख्श दे जिसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं। बेशक तू जो चाहे करने वाला है, ऐ वो जिसका हर इस्म दवा है, जिसका ज़िक्र शफा है, जिसकी इताअत गनी कर देती है। रहम फरमा उस पर जिसका वैद सरमाया उम्मीद है, जिसका साजो समान गिरिया उजारी है। ऐ नेमतें पूरी करने वाले, ऐ सख्तियाँ दूर करने वाले, ऐ तारीकियों में डरने वालों के लिए नूर, ऐ वो जिसे सब मालूम है, जो सब जानता है लेकिन इसे कोई नहीं जान सकता। रहमते नाज़िल फरमा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मुझसे वो सलूक कर जिसका तू अहल है, वो सलूक ना कर जिसका मैं अहल हूँ। अल्लाह अपने रसूल पर, आले रसूल पर सलाम भेजता है और कसरत से दरूद पाक भेजता है।